वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने MIS मॉडल का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम है तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। देन शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द फाइनेंस एंड अकाउंट सिस्टम we have to take the advantages of MIS. So first advantage of MIS, that is marketing monitoring, that is identify the emerging market segments with the respect to various changes. Strategy development, that helps in formulating a new marketing strategies। ठीक है, तो MIS का जो मेन एडवांटेज है वो मार्केट मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है न्यू, ठीक है, मीन्स इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द वेरियस चेंजेस। इस मार्केट में क्या क्या चेंजेस हुए अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स इन वेरियस सेगमेंट्स। ओके, सो वी हैव टू know that or we have to analyze that. So the strategy development helps in formulating a new marketing strategies। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर ये चीज़ें पता होगी, ठीक है, so the changes in the various market segments, so we can make the strategy development that will help for the new marketing strategies। Second advantage is functional integration, that helps in coordinating the activities of the marketing department with the other department। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट के साथ भी कोलैबोरेट यहाँ पे होगा, लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंट्स। ओके, so that is the functional integration by use of this MIS in the marketing and sales। So these are the main two advantages of the MIS system। Then we take the next topic, that is finance and account system, how we can use the MIS in this finance and account system। So account should have a control over the various recording points in the entire process of the procurement to finish the goods to the store room। ठीक है, so account has the control over the various recording points of the process to a finished good इन द स्टोर रूम। ठीक है, तो अकाउंट में अलग अलग प्रोसेसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल और द रिसोर्सेज टूवर्ड्स द फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो दिस विल बी हेल्प इन बोथ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अप्रूविंग एंड अरेंजिंग द कैश पेमेंट। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का, ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होंगे ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखना, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगे मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, उनको मेंटेन करना एंड अप्रूव करना कैश फ्लो को, ठीक है, या कैश पेमेंट्स को। सो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ F&A, दैट इज़ फाइनेंस एंड अकाउंट सिस्टम। So accounting information system, AIS in short, is linked to the all the information system in the organization। ठीक है, तो यहाँ पे AIS का यूज़ होगा, दैट इज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ कनेक्टेड टू द all the system in the organization। This is important because the data required for proper bookkeeping and generation of the transactional report is extracted from all over the organization। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अकाउंट एंड फाइनेंस एंड अकाउंट सिस्टम में रिकॉर्ड्स होंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए या रिपोर्ट जनरेट करने के लिए देर आर different departments in the organization which are linked through this AIS, so that the information is gathered from the different departments, means that is extract the information and make the final finance report। So for instance, sales information can be sought only from the marketing information system, and the stock information is available in the manufacturing information system। ठीक है, तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के लिए या सेगमेंट के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जैसे मार्केटिंग का अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में पुटअप करना है तो वो आपको मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपको मिलेगा। स्टॉक रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको अगर गैदर करना है, सो दैट इज़ अवेलेबल इन द मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम।
Next is account and finance information system. So accounting and financial information system cater for the needs of the account and finance department. ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो वर्क करता है अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए. सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल असेट्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न. ठीक है, लाइक कैश, स्टॉक, बॉन्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे कैश, स्टॉक, बॉन्ड्स में अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो डील करेगा. ऑल्सो other investment, financial liabilities, capitalization of the firm through the acquisition of new financial assets. So it also produces the periodic and annual financial statement. ठीक है, तो यहाँ पे periodical and annual financial statement जो रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ये फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा. So another important feature of finance and this account information systems are there are different requirements of the information. So first one is the strategic level, that will be consist of investment goals, long range of forecast of the financial performance. Third one, acquisition of financial resources and the goal. Second one is the knowledge level, so that is the analytical tool to design the right mix of investment, portfolio updates, market information analysis. So that is based on the knowledge. Third, management level, control over the firm's financial resources, investment management, budget management, tax management, profitability and the performance evaluation. ठीक है, तो ये सब वर्क जो होगा वो मैनेजमेंट लेवल पे होगा. ठीक है. फोर्थ इज द ऑपरेशनल लेवल, मेंटेन द कैश फ्लो स्टेटमेंट थ्रू द वेरियस ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री एंड द क्रेडिट मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये सब जो वर्क होगा या फंक्शंस परफॉर्म होंगे वो ऑपरेशनल लेवल्स पे होंगे. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स है एट द डिफरेंट लेवल्स आर गिवन हियर, दैट इज स्ट्रेटेजिक लेवल, नॉलेज लेवल, मैनेजमेंट लेवल एंड द ऑपरेशनल लेवल. So that will end the study of this financial account system which are used in the MIS. Next topic is the manufacturing, production and inventory system. So management information system is designed specially for the use in manufacturing environment. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में भी हम MIS का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, the role of manufacturing information system is to support the manufacturing operation by providing the relevant and timely information for the decision making at the different levels of the company. ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क करता है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में. ठीक है, दैट विल बी अ सपोर्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन दैट प्रोवाइड द रिलेवेंट एंड द टाइमली इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट या मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए, ताकि उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके जो है डिसीजन मेकिंग एट द डिफरेंट लेवल्स आर टेकन इन द कंपनी. इट आल्सो ऑटोमेट्स एंड सिक्योर द सीक्वेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस प्रोसेस. ठीक है, और ये जो है ऑटोमेट करता है या सिक्योर करता है जो भी सीक्वेंस है मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस के प्रोसेसेस का. ठीक है, सो द सब सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर. ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ सब टाइप्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज़ द रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट सब सिस्टम. सेकेंड इज पैरामीटर्स ऑफ द रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट. थर्ड वन इज द इन्वेंट्री सब सिस्टम. Fourth one is the production subsystem. Fifth is the maintenance and scheduling of subsystem. Sixth is quality subsystem. 7 is total quality management, that is TQM. 9 one is the costing subsystem, and this is order processing subsystem and the management level in manufacturing information system. So these are the
different types of subsystem which are used in the this manufacturing information system. Then we'll see in detail one by one. So first we start with the raw material procurement subsystem. So this is the commencement of a manufacturing process. So some might think of procurement as a simple purchasing process like any other commodity, but the spirit of having all the embracing raw material procurement subsystem is simply more than that. ठीक है, तो इस रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट सब सिस्टम में जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए, ठीक है, तो उसका परचेसिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है दैट इज आर इन द रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट सब सिस्टम. ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होगा, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है, तो वो सब एक्टिविटीज़ रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट सब सिस्टम में यहाँ पे प्रोसेस होगी. Second one is the parameters of raw material procurement. So like with every system there is a list of minimum specification which every system or subsystem has to cover. ठीक है, तो जैसे हर सिस्टम में कुछ मिनिमम स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स होता है, ठीक है, सो दैट कैन बी अ कवर. सो परचेसिंग लॉजिस्टिक of an entity is critically affect the time to the market and other quality related issues. So like the selection of supplier, choice between local purchase and import and delivery, that is the time taken. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लॉजिस्टिक मटेरियल है, ठीक है, या लॉजिस्टिक सपोर्ट है, सो फॉर दैट वी हैव टू परचेज द different material from the market. So the quality related issues or the issues like selection of supplier, choice, ठीक है, from local or from import. So these are the different activities related to that. So that requires the delivery also, that delivery requires the time. ठीक है, तो यहाँ पे अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए हमें कुछ मटेरियल परचेस करना है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ है, अलग अलग क्वालिटी है, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, क्योंकि मार्केट में अलग अलग सप्लायर्स अवेलेबल है एक ही मटेरियल के लिए. ठीक है, तो उनमें चॉइस करना या कि लोकल परचेस करना है या आपको इंपोर्ट करना है वो मटेरियल. ठीक है, अगर इंपोर्ट करेंगे तो उसका जो डिलीवरी टाइम है, ठीक है, सो दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो ऑल दीज कंसर्न्स आर रिलेटेड टू द this raw material procurement. Third one is the inventory subsystem. So inventory subsystem focus on the maintaining records and the movements on the inventory levels. ठीक है, तो inventory subsystem में जो मेन फोकस रहेगा वो रिकॉर्ड मेंटेन करने पे होगा. ठीक है, एंड जो मूवमेंट्स होंगे वो इन्वेंट्री लेवल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, प्रॉपर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर टाइमली एंड क्वालिटी प्रोडक्शन. सो द वेरियस फैक्टर विच कैन प्ले द क्रिटिकल रोल आर, फर्स्ट वन हु टू परचेज फ्रॉम सप्लायर सिलेक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट जो रहेगा वो किससे हम वो मटेरियल परचेज करेंगे, दैट इज़ सप्लायर्स अलग अलग है मार्केट में एक ही मटेरियल के लिए. तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया रहेगा वो सप्लायर सिलेक्शन का रहेगा. सेकंड फैक्टर जो रहेगा व्हेन टू परचेज, दैट इज़ द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल हम परचेस करेंगे, ठीक है, तब हम कब उसका डिलीवरी हमें मिलेगा, लाइक दैट. ठीक है, एंड द थर्ड वन हाउ मच टू परचेस. ठीक है, कितना मटेरियल रॉ मटेरियल हमें परचेस करना है फॉर आइडियल स्टॉक लेवल. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स. नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन सबसिस्टम. सो इट कैन बी सीन द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सबसिस्टम. So basically it tracks the flow of job through the entire production process. ठीक है, तो प्रोडक्शन सबसिस्टम एक क्रिटिकल पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग सबसिस्टम का, जिसमें टोटल ट्रैक रहेगा, मीन्स फ्लो ऑफ द जॉब फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, ठीक है, तो वो सब एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन सबसिस्टम के अंडर यहाँ पे रिकॉर्ड होगा. Then next is the maintenance and scheduling subsystem. For efficient production the machine should be a timely available. ठीक है, तो efficient production करने के लिए मशीन जो है वो यहाँ पे रेगुलर वर्क
वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सो मेनी टाइम्स मशीन इज़ अंडर रिपेयर एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। तो मेनी टाइम जो मशीन्स है दे आर अंडर द मेंटेनेंस मीन्स रिपेयर, so they are not available for the production purpose. So without this subsystem there is a possibility of customer order not being made on the time, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मशीन आपका रिपेयर कंडीशन में होगा और प्रोडक्शन स्टॉप होगा या प्रोडक्शन कम अमाउंट में वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो जो कस्टमर्स के जो ऑर्डर्स रहेंगे तो वो आप टाइम पे वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्वालिटी सब सिस्टम. So this subsystem ensure the production made and end product being delivered to the customer are confirming the quality standard set by the company, ठीक है। तो ये जो सबसिस्टम डील्स करती है ये जो प्रोडक्शन है उसके रिलेटेड है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर होगा कंपनी में एंड दैट कैन बी डिलीवर टू द कस्टमर एंड कस्टमर विल confirm the quality of that product which is set by the company. So the quality covers the aspects for the organization like better quality of raw material and what is being purchased in according to the organization standard and improve finished goods in the accordance with the customer specification, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेन क्राइटेरिया, बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो आप, ठीक है, कंपनी में। सेकंड वन, परचेस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड एंड थर्ड जो है जो भी फिनिश गुड्स है या प्रोडक्ट है, ठीक है, सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, मीन्स कस्टमर ने जो स्पेसिफिकेशन या ऑर्डर किया है, ठीक है, वही प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवर होना चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग्स रिलेटेड टू द क्वालिटी. Next is the total quality management. So in short it is TQM. So TQM is the set of measurement and control activities which focus on quality assurance, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो एक सेट ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू द कंट्रोल एक्टिविटीज़ दैट फोकस ऑन द क्वालिटी एश्योरेंस. सो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज एनहांस एंड देन ऑफर्ड टू द कस्टमर, ठीक है। तो इस सब सिस्टम में जो है प्रोडक्ट का जो क्वालिटी एंड सर्विसेज रहेंगे सो दैट कैन बी इम्प्रूव एंड इट इज़ ऑफर्ड टू द कस्टमर्स, ओके। Next one is the cost subsystem. So costs are incurred more frequently in the manufacturing entity. Monitoring these costs on regular basis requires the instituting of formal cost subsystem. Cost subsystem are responsible for generation of cost report which represent the cost breakup to the various base. For instance, machine usage basis, product basis, department wise, ठीक है। तो कॉस्टिंग सबसिस्टम में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या जो डेली मॉनिटर होगा डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉस्टिंग सबसिस्टम इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सो दैट विल बी रेगुलरली मॉनिटर. सो इट हैज़ द डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स, सो दे आर मशीन यूसेज बेसिस, जो प्रोडक्ट वहाँ पे डेली फॉर्म हो रहा है दैट इज़ डिपेंड. Then department wise there are different departments in the organization, okay, so it can be a breakup into the different parts. Next one is the order processing subsystem. So this subsystem deals with the following issues, that is status of order placed with the supplier, ठीक है। तो जो भी status रहेगा suppliers के लिए, ठीक है, means order placing का, so the order is placed or it is not placed like that, ठीक है, the then delivery of that order. सेकंड वन, स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंटल रिक्वेस्टेशन, मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट में जो रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, ऑर्डर्स का, सो दैट इज़ द स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंटल रिक्वेस्टेशन. थर्ड वन इज़ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल रिसीव. जो भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे टू द सप्लायर देन द सप्लायर विल प्रोवाइड द मटेरियल, सो वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ दैट रॉ मटेरियल. नेक्स्ट वन इज़ द एनी अदर इश्यूज रिलेटेड टू द सप्लायर, ओके। तो जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सप्लायर दैट इज़ टाइमली डिलीवर्ड और नॉट और द कॉस्टिंग निगोशिएशन, सो दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू द सप्लायर. सो ऑर्डर प्रोसेसिंग सबसिस्टम गिव्स द स्नैपशॉट ऑफ स्टेटस ऑफ वेरियस ऑर्डर प्लेस एट अ गिवन टाइम. तो इन शॉर्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम contains the status of various order placed
at the given time. Next is the management level in manufacturing information system. So these management level systems in manufacturing information system has divided into the these different parts. First one is the strategic level, second knowledge level, management level, and the operational level is there. So in strategic level, locating a new plant which can save the cost, इन्वेस्टमेंट इन न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक लेवल में जो न्यू प्लांट है, ठीक है, वी कैन लोकेट इट, सो द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग विल बी सेव, ऑल्सो वी कैन अडेप्ट द और इन्वेस्ट इन द न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। सेकंड नॉलेज लेवल, डिस्ट्रीब्यूटिंग द नॉलेज टू ड्राइव द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम नॉलेज बेस पे we can make the production process easy, innovative the new forms of manufacturing process. Third is the management level, monitoring the production cost and resources, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन होगा मटेरियल का, तो उसका हम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज को मॉनिटर करके उसे हम एज मिनिमम एज पॉसिबल हम वहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज ऑपरेशनल लेवल, सो द स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन टास्क, प्रोडक्शन में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे स्टेटस नोट कर सकते हैं। सो दैट विल एंड द स्टडी ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री सिस्टम। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोडक्शन प्लानिंग का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।